Hello guys, praise the Lord. Greetings to you in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। So today I will be teaching all of my disciples a subject called What's More Important? तो आज मैं अपने सारे शागिर्दों को ये सिखाऊंगा कि क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, so we will be learning today what is the thing that is more important. तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा ज़रूरी है। So now you might be asking, what kind of subject is this? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है। Actually, my teacher, the Holy Spirit, just taught me today while I was in prayer. So I thought to share with you what I just learned from my teacher. तो मेरे उस्ताद रूल कुदुस ने जब मैं दुआ में था मुझे सिखाया, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। So he taught me what was more important. So I have came to you now to share with you now that what things are more important. तो रूल कुदुस ने मुझे सिखाया कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं आपको सिखाऊँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। So now that's why I want to share some truths which Holy Spirit has shared with me for your edification and growth. तो मैं आपके साथ कुछ सच जाहिर करूँगा, आपको कुछ सच बताऊँगा जो कि रूल कुदुस ने मुझे सिखाया, जो आपकी बढ़ाई के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। All right. So now let's start it. Okay. तो हम शुरू करते हैं। So now the process is more important than power. तो जो तरीका है वो कुव्वत से ज़्यादा बढ़कर है। The process is more important than power. Just say process. प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी ज़्यादा अहमियत है पावर से। So now we as Christians, we are always, or we as believers, we are always running after power. That we want power of God. तो हम ईमानदार जो हैं ज़्यादातर पावर के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें पावर चाहिए। Don't you guys say that we want the power of the Holy Spirit so I can do this, I can do that? क्या तो आप लोग नहीं बोलते कि हमें रूल कुदुस की कुव्वत चाहिए ताकि हम ये कर सकें वो कर सकें? So I can do miracles, heal the sick, raise the dead. ताकि आप मौजज़ात कर सकें, बीमारों को शिफा देकर से मुर्दे जिंदा कर सकें। Now you guys want the power of the Holy Spirit, but the Holy Spirit himself, what he is sharing, Hanan, that I am saying the process is more important than my power. तो आप लोग जो हो रूल कुदुस की कुव्वत को चाह रहे हो, मगर रूल कुदुस जो है वो सिखा रहा है कि जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। So the Holy Spirit was teaching me my process is more important than my power. तो रूल कुदुस मुझे सिखा रहा था कि मेरा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरी कुव्वत से। Now I will share what kind of process is this. अब मैं आपके साथ बताऊंगा ये क्या प्रोसेस है। So now we desire power, but the Lord desires process. तो हम जो है चाहते हैं कि हमें कुव्वत मिले, पावर मिले, मगर खुदावन चाहता है कि हम प्रोसेस सीखें। For power comes on us and leaves us. All right. When we desire power, God gives us the power. So the power comes upon us. The power means anointing. Come on. तो जो कुव्वत है, जो पावर है वो हम पे आती है जब हम मांगते हैं खुदावन से, तो कुव्वत हम पे आती है जो कि मसा है। But it leaves us. मगर वो चला जाता है। But through the process, the power does not comes upon us. It comes in us. मगर प्रोसेस के साथ कुव्वत जो है आपके ऊपर नहीं आती, मगर वो आपके अंदर आ जाती है। So when we ask for power, the power comes upon us and leaves us. जब हम कुव्वत मांगते हैं तो जो पावर है वो हमारे ऊपर आती है और चली जाती है। But when we go through the process, come on, मगर जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं, that power comes in us and never leaves us. वो पावर जो है वो हमारे अंदर आ जाती है और कभी नहीं जाती। That's why the Holy Spirit said to me, process is more important than power itself. इसलिए रूल कुदुस ने मुझे बोला कि प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है पावर से। So now what kind of power is that? अब ये कौन सी पावर की बात हो रही है? Now I will tell you this. अब मैं आपको बताता हूँ। It's important to know what kind of power I'm talking about. ये ज़रूरी है कि आप जानो कि मैं किस कुव्वत की बात कर रहा हूँ। So now I was telling you guys that when we ask for the power, it comes upon us, but it leaves. मैं आपको बता रहा था कि जब हम पावर मांगते हैं तो पावर हमारे ऊपर आती है और वो चली जाती है। But when we go through the process, the power of God comes in us. Come on, tell. मगर जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं तो खुदावन की जो पावर है वो हमारे अंदर आती है And never leaves us. और कभी नहीं जाती वो। Now what kind of power is this? अब ये कौन सी पावर की बात हो रही है? That's the power to never leave Jesus that is developed
by the process that you go through. अब ये उस पावर की बात हो रही है कि आप यीशु मसीह को कभी छोड़ के नहीं जाओ, जो कि डेवलप होता है प्रोसेस के थ्रू. Now I want to again re-explain this thing because it's very important. अब मैं आपको ये दोबारा से बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. All right. So when we are asking for power, the power is coming upon us but leaving us. अब जब हम पावर मांग रहे होते हैं तो पावर हमारे ऊपर आती है मगर चली जाती है. But when we go through the process, मगर जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं so that power comes in us. तो वो पावर हमारे अंदर आ जाती है. So the power that is coming upon us is for supernatural, doing miracles and doing all kinds of wonders for God. अब जो पावर हमारे ऊपर आती है वो सुपर नेचुरल मौजज़ात करने की क़ुव्वत होती है. And doing miracles and wonderful things for God. क्योंकि आप मौजज़ात करो और खुदावन के लिए बड़े बड़े काम करो. But the power that comes in us, मगर जो पावर हमारे अंदर आती है, that power enables us not for miracles but for us to never leave Jesus no matter whatever happens. मगर जो पावर हमारे अंदर आती है वो हमें इस काबिल बनाती है कि वो मौजज़ात के लिए नहीं आती, वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदावन यीशु को कभी ना छोड़ के जाएं. No matter what happens to us. ताकि हमारी ज़िंदगी में भले कुछ भी हो जाए. Because a person can work miracles and then leave Jesus and walk away. क्योंकि एक शख्स जो है वो मौजज़ात करने के बावजूद खुदावन यीशु को छोड़ सकता है. But when his power comes in us, मगर जब उसकी पावर हमारे अंदर आ जाती है, he gains a new power. वो एक नई पावर हासिल कर And लेता है. that power is now whatever happens in his life, he is never going to let go of Jesus, which is better than doing miracles. और वो क़ुव्वत कौन सी है कि कुछ भी हो जाए उसकी ज़िंदगी में वो कभी यीशु को छोड़ के नहीं जाएगा. और ये मौजज़ात करने से बड़ी पावर है To never let go of Jesus. कि आप यीशु मसीह को कभी छोड़ के नहीं जाओ. Now you guys tell me, what is greater, doing miracles or never letting go of Jesus? आप मुझे बताओ कि मौजज़ात करना बड़ी बात है या यीशु मसीह को कभी ना छोड़ के जाना. यीशु मसीह को कभी ना छोड़ के जाना. That is why the Holy Spirit said the process develops that power which enables you that you are never going to let go of Jesus. इसलिए रूल कुदुस ने मुझे सिखाया कि जो प्रोसेस है वो तुम्हारे अंदर ये वो पावर डेवलप करता है कि तुम कभी यीशु को छोड़ के ना जाओ. So that's why the Holy Spirit told me the power that comes on us, that's the anointing, not only leaves us when we are done ministering, but it also does not guarantee that we will leave Jesus on the way. जो क़ुव्वत हमारे ऊपर आती है, जो पावर हमारे ऊपर आती है मौजज़ात करने के लिए, जो मसा आता है वो हमें इस काबिल तो बनाता है कि हम मौजज़ात करें, मगर वो ये गारंटी नहीं देता कि हम यीशु को छोड़ के जाएंगे. And it also leaves that very power that is coming upon us also leaves us when we are done ministering or preaching, etc. और वो क़ुव्वत जो है हमारे ऊपर से चली जाती है जब हम अपनी खिदमत कर लेते हैं. But the greatest example for the power that comes upon us, the example we have is Judas Iscariot. और जो सबसे बड़ी हमारे पास मिसाल है वो है यहूदा इस्करियोती की, जो पावर हमारे ऊपर आती है. So the Judas Iscariot experienced the power of Christ upon him. तो यहूदा ने खुदावन की क़ुव्वत को अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया कि उसके ऊपर पावर आई. And scripture tells us that he was casting out demons. और कलाम में बताता है कि वो बदरूहें निकाल रहा था. But Judas Iscariot did not experience power that went in him and rested there, that he would gain a new power, never to leave Jesus and deny him. मगर यहूदा इस्करियोती ने ये पावर एक्सपीरियंस नहीं की कि जो क़ुव्वत उसके अंदर आती और वो उसमें रहती और वो यीशु को कभी छोड़ के नहीं जाता. So he worked miracles by the power upon him, but he also denied and left Jesus. तो उसने मौजज़ात किए जो पावर उसके ऊपर आई, मगर उसने यीशु मसीह का इनकार भी किया. So that's why the power within is more important. तो इसलिए जो पावर आपके अंदर है वो ज़्यादा ज़रूरी है. So that you will never deny Jesus. ताकि आप यीशु को कभी छोड़ के ना जाओ. No matter what happens. ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए भले. That's why this power is greater than the power that comes upon you for miracles. इसलिए जो पावर आपके अंदर आती है वो मौजज़ात करने की पावर जो आपके ऊपर आती है उससे बड़ी है. So now that's why the process is designed to craft durability in us to retain Christ in us. तो इसलिए जो प्रोसेस है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके अंदर एक एबिलिटी बनाए कि आप खुदावन यीशु को कभी छोड़ के ना जाओ. Yes. So why God allows us to go through the process to get anything from God? तो हम सीखेंगे कि खुदावन क्यों जो है हमें प्रोसेस से गुजारता है कि हमें खुदावन से कुछ मिले ताकि. So that God can create this ability in us, durability in us, that we can retain Christ in us and not let him go.
ताकि खुदावन जो है हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करे कि हम हम्म। खुदावन यीशु को अपने अंदर रखें और कभी ना जाने दें। In all seasons and in all harsh conditions. भले आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, जितने मर्जी मौसम आ जाएं और जितनी मर्जी तंगी आ जाएं, कैसे भी हालात हो जाएं, अब खुदा वो सख्त उस ताकत के जरिए जो अंदर डाल रहा है पैदा कर देगा कि हुण मैं यीशु ने नहीं छाड़ना। सही है, आगे चलते हैं। सबको समझ आ रही है? सिंपल सच्चाई है मगर जिंदगी बदल देगी। कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? नाउ लिसन टू मी नाउ, कम ऑन, अब मेरी बात सुने नाउ लिसन टू मी केयरफुली। और मेरी बात ध्यान से सुने। For it is fine if power of Christ, that is anointing, leaves that is upon you. तो ये सही है कि आप जो पावर आपके ऊपर आती है, जो मसा है, जो कि मौजूद के लिए, वो आपको छोड़ के चली जाती है। Listen again. दोबारा सुने। It is fine if the power of Christ, it is fine if the power of Christ, that is anointing that comes upon you, leaves you. It is fine. ये ठीक है कि जो कुव्वत पावर आपके मसीह ऊपर की आती कुव्वत। है, मसीह की पावर आपके ऊपर आती है कि आप मौजूद करें और वो आपको छोड़ के चली जाती है, ये ठीक है। But it is, but nothing will remain fine if person of Christ that is in you leaves you. मगर कुछ भी सही नहीं रहेगा कि अगर जो कुव्वत आपके अंदर है, जो कि खुदावन यीशु मसीह का पर्सन है, वो आपको छोड़ के चला जाए। How many understood? दोबारा बताऊंगा, अब उर्दू में बताता हूँ। चले ठीक है, जो खुदा की मसीह की कुव्वत आपके ऊपर होती है मौजूद और करने के लिए, जो मसा है वो छोड़कर चला जाए, ये ठीक है। मगर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो कुव्वत जो मसीह यीशु के शख्स को आपके अंदर रखती है वो छोड़ के चले जाए, जिसकी वजह से यीशु आप में से निकल जाए, वो ठीक नहीं है। That is why process is important, because it creates power in you to never let go of Jesus. इसीलिए प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अंदर वो कुव्वत पैदा करता है कि आप यीशु मसीह को कभी छोड़ के ना जाओ। That is God makes his servants, the man of God, wait for long years and allow them to go through the process so that he creates that substance in them that can hold Christ forever and never let him go. तो इसलिए खुदावन जो है अपने खात्मों को देर से, मतलब उनको देर लगाता है, उनके साथ अरसा गुजारता है कि उनके अंदर जो है एक सब्सटेंस पैदा करे, उनके अंदर एक मादा पैदा करे, जो कि प्रोसेस से पैदा होता है, जो कि सब्सटेंस होगा खुदावन का, कि वो उस खुदावन को कभी छोड़ के ना जाए। That's why the power of character within keeps you in Christ and Christ in you. इसलिए जो कैरेक्टर की पावर है वो खुदावन यीशु को आपके अंदर रखती है और आपको खुदावन यीशु में कायम रखती है। But the power of God just helps you to work for Christ, not to live for Christ. मगर जो खुदावन की पावर है जो आपके ऊपर आती है वो आपकी मदद करती है कि आप खुदावन के लिए काम करो, मगर खुद इसलिए नहीं, मगर ये कुव्वत नहीं देती कि आप उसके साथ रहो। Listen to me again. This factor you need to understand. This truth you need to understand. आपको ये चीज़ समझनी है और ये सच जानना है। So the power of God just helps you to work for Christ. The power of God just helps you to work for Christ, but not to live for Christ. आपको ये समझना है कि जो खुदावन की कुव्वत, जो पावर आपके ऊपर आती है, वो आपकी मदद करती है कि आप खुदावन के लिए काम करो, मगर वो ये नहीं आपकी मदद करती कि आप खुदावन के लिए जियो। हाँ, तो जो खुदा की कुव्वत आपके ऊपर आ रही है वो मदद कर रही है कि आप उसके लिए मौजज़त करो, उसके लिए शिफा करो, उसके लिए कलाम सुनाओ, मगर वो ये मदद नहीं कर रही है आपकी कि आप उसके लिए जी सको। So which power helps you to live for Christ so that you will never leave Christ? तो कौन सी पावर है जो आपकी मदद करती है कि आप खुदावन यीशु के साथ जियो और कभी ना उसको छोड़ के जाओ? So that power is the power that is within, which is born out of the tough process you go through. तो वो पावर वो है जो आपके अंदर पैदा होती है जब आप मुश्किल समय से गुजरते हो। Exactly. That is why God allows suffering in our life. तो इसलिए खुदावन हमारी जिंदगी में सफरिंग अलाउ करता है। That is why God allows us to go through the process of pain. तो इसलिए खुदावन हमें दर्द के प्रोसेस से गुजरने देता है। That is why God allows us to go through the process of rejection. इसलिए खुदावन हमें रद्द किया जाना कब से गुजरने देता है कि लोग हमें रद्द करें। That is why God allows us
to go through the process of depression and loneliness and even to some extent experience demons of suicide. इसलिए खुदावंद अलाउ करता है कि एक उसका जो खादिम है वो डिप्रेशन और अकेलेपन से गुजरे और इवन कुछ दफ़ा सुसाइड की थॉट से भी गुजरे. So God allows that. खुदावंद वो रहने देता है. So why does he do it? So that he can go through the process of creating that ability that he can retain and hold Christ and never let him go. तो वो इसलिए होने देता है ताकि वो शख्स के अंदर वो एबिलिटी, वो कुव्वत पैदा हो जाए कि वो खुदावंद यीशु को रखे और कभी ना छोड़े. Okay, no, that was the first lesson the Holy Spirit taught me. तो ये पहला लेसन था जो रूह कुदस ने मुझे सिखाया. Now, did you guys all learn it? हम सबने सीखा. So first lesson was the process is more important than the power. तो पहला लेसन था कि जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है पावर से. So how many of you have learned and understood it well? किस किसने ज़्यादा सीखा और समझा. So should I move on to the next lesson? क्या मैं आगे बढ़ूँ? Okay, let's move on. So you excited for the next one? आप सब एक्साइटेड हैं अगले के लिए. Okay, now the next lesson is, are you ready? सब रेडी. Salman Samson, you ready? सलमान सैमसन आप तैयार हैं? Now listen. The pressure is more important than the pleasure. जो प्रेशर है, जो बोझ आपके ऊपर आता है, वो ज़्यादा मज़ेदार है उस प्लेजर से, मज़े से. ज़्यादा ज़रूरी है मज़े से. वो जो बोझ आपके ऊपर आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है मज़े से. Did you understand? Let me explain. ठीक है? The pressure you go through for Christ, that everyone turns against you, is more important than pleasure to be accepted in Christ. जो बोझ, जो प्रेशर आपके ऊपर आता है कि सब आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो ज़रूरी है. ज़्यादा ज़रूरी है उससे जो मज़ा आपको मसीह में मिलना है. वो प्रेशर ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें सारे लोग आपके अपने प्राय को छोड़ के चले जाते हैं कि आप यीशु की बात मान रहे हैं. किस मज़े से कि मसीह में जब आपको कबूलियत मिलती है कि अरे 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 बच्चा दुआ कर रहा है, अरे 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 बच्चा पादरी बन गया, अरे अरे बच्चा तो बहुत अच्छा हो गया. तो ये जो मज़ा है ना, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी वो दुदकार और फटकार और जो ज़लालत है, उसका प्रेशर है कि आपको सब छोड़ जाएं यीशु के नाम पे. So I want to say that in English now, the pressure that a believer experiences by being rejected, cursed, accused, criticized, mocked for following Christ is more important than the joy or the pleasure that he experiences by being accepted in Christ when all community is rejoicing, oh, he got saved, or oh, he's becoming a pastor, or oh, he's going to seminary. Why? Because pressures develops character of Christ in us. Come on. प्रेशर है वो मसीह का किरदार आप में बनाता है. The pressure develops character of Christ in us. प्रेशर जो है वो मसीह का किरदार आप में बनाता है. But pleasure does not build character of Christ in us. मगर जो प्लेजर है, जो मजा है, वो नहीं बनाता मसीह का किरदार हम. It is the pressure that builds the character of Christ in us. वो प्रेशर है जो मसीह का किरदार आप में बनाता है. Do you want to know why? आपको पता है क्यों? Do you want to know why? आप जानना चाहते हैं क्यों? If you want to know why, then say at least yes. Yes. You want to know why the pressure builds character of Christ and not the pleasure? आप जानना चाहते हैं क्यों जो है प्रेशर जो है वो मसीह का किरदार बनाता है, ना कि मजा, प्लेजर. Yes. Now listen. Come on, now listen. अब सुने. Yes. Because diamonds are formed under pressure, not under pleasure. ये जो हीरा है वो प्रेशर के अंदर बनता है, ना कि प्लेजर के अंदर. It's that simple. ये इतना आसान है. It's that simple. ये इतनी आसान बात है. क्योंकि हीरे जो हैं वो कानों के अंदर उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उसके अंदर वो कोले से हीरो के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं, ना कि इसी के नीचे मज़े के अंदर बैठे रहो और हीरा बन जाए. So the diamonds are formed under extreme pressure. They are not formed. They turn from coal into a diamond under extreme hot pressure. They do not form or transform into a diamond from coal under a comfortable, pleasureful environment of, AC or whatever. Do you get me?
क्या आपको समझ आ रही है? That is why pressure is important to make us into the diamond of Jesus. तो इसलिए प्रेशर जो है वो जरूरी है कि हमें वो यीशु मसीह का हीरा बना दे। Amen. Come on. So now that was the second lesson the Holy Spirit taught me. तो ये दूसरा लेसन था जो रूल कुदुस ने मुझे सिखाया। Now are you ready for the third one? तीसरे के लिए Are you sure you're ready? वाकई तैयार है? So the third lesson is building of roots are more important than eating of fruits. जड़ों को तैयार करना ज्यादा जरूरी है फल खाने से। Building of roots is more important than eating of fruits. तो जड़ों को तैयार करना ज्यादा जरूरी है फल खाने से। Now, what does this mean? अब इसका क्या मतलब है? Now let me give you examples अब मैं आपको मिसाल देता हूँ so that you can understand ताकि आप समझ सकें, this statement. Come on. ताकि आप ये जुमला समझ सकें। So, what is a root and what is a fruit? Let me differentiate. अब जड़ क्या है और फल क्या है मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। So, miracles are the fruit. Tell them. जो मौजज़ा है, मौजज़ात है वो फल है, But prayer life is the root. मगर जो दुआगो जिंदगी है वो जड़ है। Once more time, she says. Miracles are the fruit, but prayer life is the root. मौजज़ात जो है वो फल है, मगर जो दुआगो जिंदगी है वो जड़ है। So fruit is not important. The fruit is not more important than the root. तो जो फल है वो ज्यादा जरूरी नहीं है जड़ से। What does this mean? इसका क्या मतलब? Miracles are not more important than prayer life. मौजज़ात जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है दुआगो जिंदगी से। Just make sure the video is recording fine, Alfred. So now let me give you another example. अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। So holiness is the fruit. Come on. पाकीज़गी जो है वो फल है। Holiness is the fruit, पाकीज़गी जो है वो फल है, but fasting is the root. मगर जो रोज़ा है वो जड़ है। Because living a fasting and consecrated life produces holiness. क्योंकि आप रोज़ा और अलग की हुई जिंदगी जो है जब जीते हैं तो वो फल पैदा करता है पाकीज़गी का। Are you understanding? Are you understanding? क्या आपको समझ आ रही है? So, preaching revelations is the fruit. तो मुकाशफे जो है वो सिखाना वो फल है, Just like I am sharing with you right now. जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। So, preaching revelations is the fruit. तो तालीम देना मुकाशफों की वो फल है, But spending time with the Holy Spirit is the root. मगर रूल कुदुस के साथ वक्त टाइम स्पेंड करना वो उसकी जड़ है। So now that was all that I was having conversation with my best friend Holy Spirit. तो यही वो सारी चीज़ें थी जो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रूल कुदुस के साथ बातें कर रहा था, And this is what he was teaching me. और यही वो मुझे सिखा रहा था। Do you like it? Yes. Nice. So brother Anand, should we continue? Yes, bro. So now this is the, I believe this was the third lesson, all right? तो ये तीसरा लेसन था जो हमने सीखा। Now the fourth lesson, अब चौथा लेसन which the Holy Spirit taught me. जो रूल कुदुस ने मुझे सिखाया। The pain of laying foundation of Christian building is more important than enjoyment of standing on that roof of that building. जो दर्द होता है एक क्रिश्चियन बिल्डिंग की बुनियाद रखने में वो ज़्यादा ज़रूरी है उस मज़े से जो आप छत पे बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे उसकी। मैं उर्दू में बोलना चाहूँगा, एक मसीह जिंदगी जो है ना बिल्डिंग की मानद है। एक मसीह जिंदगी बिल्डिंग की तो उस बिल्डिंग की बुनियादें डालने के लिए दर्द ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि उसकी बिल्डिंग की छत के ऊपर बैठ के मज़े लेना। उस बिल्डिंग की बुनियाद डालने की दर्द ज़्यादा बेहतर है उस बिल्डिंग की छत पर बैठ के ठंडी हवा खाने से। What I just said was that the pain to lay the foundation of a Christian building is better than to enjoy the cool breezes on the rooftop of that building. All right? So, why the pain of the foundation is important? Come on. तो क्यों दर्द जो है वो जो बुनियाद रखने की दर्द है वो ज़रूरी है? Why it is important? क्यों वो ज़रूरी है? Because foundation is what
holds the building. क्योंकि जो बुनियाद है वही है जो बिल्डिंग को खड़े रखता है। So what is the use of a beautiful building if it will fall after 2 years? तो क्या फ़ायदा उस खूबसूरत बिल्डिंग का कि वो 2 साल बाद गिर जाए? What is a use of a very attractive building that will fall anytime and you never know when? क्या फ़ायदा उस खूबसूरत अट्रैक्टिव बिल्डिंग का जिसका आपको नहीं पता कभी भी गिर सकती है? What is the use of that strong building that has a weak foundations? क्या फ़ायदा उस मजबूत बिल्डिंग का जिसकी कमज़ोर बुनियादें हैं? Because it can fall anytime and it will kill you too. और वो क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है और साथ में आपको भी मार देगी। So that is why, just like that, तो इसीलिए इसी तरह what is the use of accepting Christ into your life when you are going to deny him after some time? तो मतलब क्या फ़ायदा मसीह को कबूल करना कि कुछ देर बाद आप उसको छोड़ दोगे? What is the use of accepting Jesus that you are going to let him go and deny him after some time? इनकार कर दोगे? Come on, tell them. मतलब क्या फ़ायदा कि आप मसीह को कबूल करो आज और कुछ सालों बाद कुछ दिनों बाद आप उसका इनकार कर दो? What is the use? क्या फ़ायदा? So because your foundations were weak, क्योंकि आपकी बुनियादें कमज़ोर थी, so you were praying today आप आज दुआ कर रहे थे but drinking tomorrow और कल शराब पी रहे थे because your foundations were weak. कि आपकी बुनियादें कमज़ोर थी। So today you were fasting तो आज आप रोज़ा रख रहे थे and tomorrow you were smoking और कल आप सिगरेट पी रहे थे because your foundations were weak. क्योंकि आपकी बुनियादें कमज़ोर थी। Today you were worshiping आज आप गीत गा रहे थे and and few days after you were abusing. और कुछ दिनों बाद आप गालियाँ दे रहे थे। Why? Because the foundations were weak. क्यों? क्योंकि बुनियादें कमज़ोर थी। So now what is the use of this kind of life? तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? Because this is not a Christian life. क्योंकि ये एक मसीही ज़िंदगी नहीं है, This is a life of a Satan. ये शैतानी ज़िंदगी है। Because all of these works the devil does. क्योंकि ये सारे काम शैतान करता है। And that means this building belongs to Satan. इसका मतलब है कि ये इमारत शैतान को बिलोंग करती है। ये शैतान की बिल्डिंग है, शैतान की इमारत है. So that's why it is important to lay first the foundations, or you can say it's important to first to endure the pain of laying the foundations first. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप बुनियाद रखो, या मैं ऐसे कहूँ कि आप पहले उस दर्द से गुजरो, बुनियाद रखने की दर्द से, So that your building will never fall no matter what happens. तो ताकि आगे जाके आपकी बिल्डिंग कभी ना गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए। So now what is the foundation? अब बुनियादें क्या हैं? What is the foundation? अब बुनियाद है क्या? So there are 4 foundations of a Christian life. तो 4 बुनियादें हैं एक मसीही ज़िंदगी की, And they are very simple to know. और बहुत आसान है वो। You know the heart has 4 chambers. आपको पता है कि दिल के 4 वॉल्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, And even if the one chamber is dead, the heart collapses and you get a heart attack. और अगर उनमें से कोई एक भी बंद हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। And likewise, the foundations of a Christian building, or you can say there are 4 foundations of a Christian building. इसी तरह एक मसीही ज़िंदगी की 4 बुनियादें हैं। So the first foundation is तो जो पहली बुनियाद है a strict prayer life. वो है एक स्ट्रिक्ट प्रेयर लाइफ। So you दुआ pray, को ज़िंदगी। you pray daily. आप रोज़ दुआ करोगे, You don't miss praying. आप कभी भी दुआ मिस नहीं Now करोगे। this is not a prayer. When you're eating, you're saying thank you God for this food. This is prayer. अब ये दुआ नहीं है कि आप खाना खाते हुए दुआ करो, खुदावन तेरा शुक्र तूने खाना दिया। I did not said the foundation of a Christian life is a prayer. मैंने ये नहीं बोला कि मसीही ज़िंदगी की बुनियाद प्रेयर है। I did not said the foundation of a Christian life is a prayer. मैंने ये नहीं बोला कि एक मसीही ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो दुआ है। I said the foundation of a Christian life is a prayer life. मैंने ये बोला कि एक मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है दुआ गो ज़िंदगी। It's a life. वो ज़िंदगी है दुआ की, So prayer is a life to you. कि दुआ जो है आपके लिए ज़िंदगी बन गई है, And you are praying all of your life. कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी दुआ कर रहे हो, Not just when you're about to eat. तब नहीं सिर्फ जब आप खाना खा रहे हो। Now you can see the errors. अब आप यहाँ पे गलतियाँ देख सकते हो Why people fall. कि क्यों लोग गिरते हैं। Now the second foundation अब दूसरी बुनियाद जो है, or second chamber of a Christian heart. यस, दूसरा चेम्बर एक मसीही दिल का।
दूसरा वॉल आपके मसीह दिल का, you know what is that? वो क्या That है? is fasting. वो है रोज़ा। You don't fast until the Lent season comes. आप तब रोज़ा नहीं रखते जब ये हमारा रोज़े आते हैं, Nor you don't fast until a trouble comes upon you. और आप तब भी रोज़ा नहीं रखते जब आप पे मुसीबतें आ रही हैं। You fast because it's a habit. आप रखते हो रोज़ा क्योंकि ये अब आपकी आदत बन गई है। You fast because you want to make your foundations even more stronger. आप रोज़ा रखते हो ताकि आप अपनी बुनियादों को और मजबूत करो। You fast because you want your flesh to die so that your spirit can come alive. आप रोज़ा रखते हो ताकि आपका जिस्म मरे और आपकी रूह जिंदा हो। You know what, do you want to know why? आपको पता है क्यों? Because if flesh remains alive, your flesh himself or itself will destroy your foundation. क्योंकि अगर आपका जिस्म जिंदा है तो वो जिस्म ही आपकी बुनियादों को मार देगा। That is why you're fasting, so that you can subdue the flesh to help your foundation remain safe. तो इसलिए आप रोज़ा रखते हो ताकि आप अपने जिस्म पे गालिब आओ और अपनी बुनियादों को कायम रखो। You get it? So these are the two foundations. Now the third foundation अब तीसरी बुनियाद जो है is obvious. वो जाहिर है, Bible reading. Mwah! It's the word of God. तो वो है खुदा का कलाम। This is the foundation. यही वो कलाम आपकी बुनियाद है। So तीसरी, you don't have to read the word of God. आपको कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, You have to apply or obey the word of God. आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है, Then your life will change. तब आपकी ज़िंदगी बदलेगी। And when you start applying or obeying the word of God, और जब आप उस पर अमल करते हो खुदा के कलाम पे, then you start to experience the word of God. तो आप वही तजर्बा करोगे जो उसमें लिखा है। For example, if Moses saw God face to face, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मूसा ने खुदावन को रूबरू देखा, if you are obeying this word of God, और अगर आप खुदावन के कलाम पे चल रहे हो then you are going to see God face to face too. तो आप भी खुदावन को फेस टू फेस देखोगे, Unless you are religious enough not to doubt it. अगर आप मजहबी नहीं हो और जो कि शक करे। All right. So that's the third foundation. तो ये तीसरी बुनियाद है। And the fourth foundation is और जो चौथी बुनियाद है वो obvious. जाहिर है, It's fellowshipping with fiery saints. Not any kind of saints, true fiery saints. और वो है कि आप फेलोशिप को रखते हो आग से भरे हुए लोगों के साथ, किसी भी लोगों के साथ नहीं मगर आग से भरे हुए जो खुदा के लोग हैं। Now, you can fellowship with a pastor and still get your foundation destroyed because that pastor was himself a dead person. आप एक खादिम के साथ, आप एक पास्टर के साथ फेलोशिप रखते हो और आप तब भी रखते हुए भी अपनी बुनियादें ख़राब कर सकते हो क्योंकि वो पास्टर जो था वो खुद मुर्दा था। So it does not require a pastor or a man of God to keep your foundation secure. आपको किसी पास्टर या किसी खादिम की ज़रूरत नहीं है कि अपनी बुनियादों को कायम रखो। You just need a simple group of believer or just any believer who is truly on fire for Jesus and has the fire of the Holy Ghost. आपको सिंपली 2-4 हो आपके साथ या कुछ लोग हों जो भरे हुए हो रूल कुदूस की आग से, उनकी ज़रूरत है, And they are just enough. वही आपके लिए काफ़ी है। All right, so these are the four foundations. तो ये वो 4 बुनियादें हैं। So now I will teach you the another. Now we will go a little faster. Okay, so we have to finish. तो थोड़ा तेज़ जाएंगे क्योंकि हमें ख़त्म करना है। All right, so that's another lesson which the Holy Spirit taught me. तो ये एक और लेसन था जो रूल कुदूस ने मुझे सिखाया। The combat with the devil to remain in Christ is more important than the comfort in Christ to be safe from the devil. जो जंग है जो आपको खुद जो कि शैतान के साथ आपके करनी है ताकि आप मसीह में कायम रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है उस आराम से जो कि आपको मसीह में मिलता है कि आप घर पे बैठो और शैतान से safe रहो. और आप शैतान से सेफ रहो। Now I want to paraphrase this. Now I will paraphrase this statement in Urdu. मैं उर्दू में बताना चाहूँगा, वो जंग जो शैतान से आपको करनी पड़ती है यीशु मसीह में रहने के लिए कि यीशु को शैतान आपसे निकाल ना ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है उस आराम से जो आपको यीशु में मिलता है शैतान से सेफ रहने से, कि आप शैतान से बचे हुए हो। शैतान से बचना अच्छा नहीं है मसीह यीशु में रहने में, बल्कि शैतान से लड़ना ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे लड़ने की वजह से वो ताकत हासिल कर सकोगे, आपको यीशु आपके अंदर रहे। कितने लोगों को बात समझ आई? टू फाइट विद द डेविल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू नॉट टू फाइट विद द डेविल। कम ऑन। तो शैतान से जंग लड़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके बनस्बत कि आप शैतान से नहीं लड़ो। सो गॉड अलाउज अस टू फाइट विद द डेविल तो खुदावंद अलाउ करता है कि हम शैतान से लड़ें so that he can
see how much we love Jesus, ताकि वो देख सके कि हम यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं, that we will not let him go. कि हम उसे नहीं छोड़ के जाएंगे. So Satan wants us to grieve on what God has not given us. तो शैतान जो है वो चाहता है कि हम मायूस हो उन बातों पे जो खुदावन ने हमारे लिए नहीं की. But Holy Spirit wants us to enjoy what God has already given us. मगर रूल कुदूस चाहता है कि हम उन बातों के लिए खुश हों जो खुदावन ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दी है. So शैतान चाह रहा है कि जो खुदा ने नहीं किया आप उसके ऊपर रोते रहो, मगर पाक रूह कह रहा है बंदे हो होश से आओ, जो खुदा ने किया उसके लिए तो खुशी मना लो पहले. जो नहीं किया उसके ऊपर रो रहे हो, जो किया उसके लिए तो खुश हो सकते हो, उस पर नहीं हो रहे. All right, now another lesson which the Lord taught me. एक और जो लेसन खुदावन ने मुझे सिखाया. So that's the trick of the enemy to make us focus on what God has not done for us. तो ये शैतान की चाल है कि वो हमारे जहन में ये रखता है कि हम उस चीज़ पे ध्यान दें जो खुदावन ने हमारे लिए नहीं की. So we won't be happy and grateful for what God has already done for us. ताकि हम उन चीज़ों पे ना खुश हों जो खुदावन ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दी हैं. तो शैतान चाहता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो खुदावन ने नहीं किया, ताकि हम डिस्करेज हो, हमारा हौसला पस्त हो और हम खुदा का नाशुक्र हो जाए. किस चीज़ के लिए? जो ऑलरेडी खुदा ने किया और तुम्हारे लिए कर रहा है. Just like in the Garden of Eden, there were many thousands of trees, but Satan said, "Why just only one tree's fruit you cannot eat?" जैसे बागे अदन में बहुत सारे दरख्त थे, मगर शैतान ने आगे बोला कि क्यों एक दरख्त है जिसका फल तुम नहीं खा सकते. And he shifted his focus, their focus from the 1,000 trees from just one tree. तो उसने उनका ध्यान उन हजारों दरख्तों से एक दरख्त पे लगा दिया. So enemy plan is to make you weep on what you don't have, so you remain discouraged. Come on. तो शैतान का ये मकसद है कि आपको वो ध्यान लगाए उन चीज़ों पे जो आपके पास नहीं है, ताकि आप मायूस रहो. So शैतान ये चाहता है कि आप उन चीज़ों के लिए रोते रहो, ठीक है ना, जो खुदा ने आपके लिए नहीं किया, आप डिस्करेज रहो. But God's wisdom is to enjoy what we have already. मगर खुदावन की हिकमत ये है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश हो. In meantime, उसी दौरान He will give you for what you don't have. और उसी दौरान जब तुम खुश रहोगे उन चीज़ों के लिए जो खुदावन ने आपको दी हैं, तो खुदावन जो नहीं दिया वो भी दे देगा. So you can be encouraged in the hope of the glory that is coming for you. तो आप ताकि खुश रहो उस जलाल के लिए और उस उम्मीद में रहो उस जलाल के लिए जो आने वाला है. So now listen to me. अब आप मेरी बात सुने. Satan cannot discourage you or disappoint you शैतान जो है वो आपको मायूस या आपको डिस्करेज नहीं कर सकता by his lies and tricks अपनी झूठों से, अपनी झूठ से. if you know good enough how good and generous your father is. अगर आप ये जानते हो कि आपका खुदावन कितना भला है और generous है, खुले दिल का है. खुले दिल. You know, शैतान आपको मायूस और बेवकूफ़ नहीं बना सकता अपनी चालबाजियों से, अपने झूठ से. अगर आप अपने बाप को जानते हो कि उसका दिल कितना बड़ा है और वो कितना भला है, अगर आपको अच्छी तरह पता है अपने बाप का. All right. So problem is that we don't know him. मगर मसला ये है कि हम अपने बाप को नहीं जानते. That how good enough he is. कि वो कितना भला है. That's why enemy lies bad enough to break your love and faith for him. तो इसलिए शैतान इतना झूठ बोलता है ताकि हमारा जो प्यार है उसके लिए ठंडा हो जाए. क्योंकि हम अपने बाप को नहीं जानते कि वो किस हद तक भला है, इसलिए शैतान उस हद तक झूठ बोलता है कि आपका ईमान टूट जाए, मोहब्बत कम हो जाए और अब वापस दुनिया में चले जाओ. ओके, नाउ अनदर लेसन. अब एक और लेसन जो मैंने सीखा. स्ट्रॉन्ग लेग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन माइटी विंग्स. जो मजबूत टांगे हैं वो मजबूत परों से ज़्यादा ज़रूरी हैं. Strong legs are more important than strong wings or mighty wings. मजबूत टांगे जो हैं वो मजबूत परों से ज़्यादा ज़रूरी हैं. Why? क्यों? Because when you fall, you land safely on ground without breaking your legs, so you can walk again. इसलिए जब आप गिरते हो और आप ज़मीन पे आते हो तो आप अपनी टांगे मजबूत होंगी तो खड़े रहोगे ताकि आप सेफली वॉक कर सको ज़मीन पे. ठीक है, मजबूत परों से ज़्यादा मजबूत टांगे ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि जब आप उड़ रहे हो और खुदा ना खास्ता गिर जाओ तो मजबूत टांगे हैं तो आप बासानी सेफली
जमीन के ऊपर लैंड करोगे और आपकी टांगें नहीं टूटेंगी और आप चलते रहोगे. What does this mean? अब इसका क्या मतलब? It means having humility is more important than having any kind of achievement. इसका मतलब है कि खाकसारी जो है वो बेहतर है उससे कि आपके पास कोई अचीवमेंट हो, Any kind of achievement. किसी भी कामयाबी. तरह की कामयाबी हो आपके पास, So more important is humility, तो ज़्यादा ज़रूरी खाकसारी है. because when you achieve any success क्योंकि जब आप कोई कामयाबी पाते हो and you don't have humility, और आपके पास खाकसारी नहीं होती, that success will bring or become a curse for you. तो वो जो कामयाबी है वो आपके लिए लानत बन जाएगी. So now another thing I want to teach you. अब एक और चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, Some demonic bondages are more important to develop intense prayer life than deliverance. तो कुछ जो शैतान ने आपको बांधा होता है, बंधन जो है वो ज़रूरी होते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ बनाओ डिलीवरेंस से. Because after deliverance your thirst for prayer can die. क्योंकि अगर आप आज़ाद हो जाओ तो आपकी दुआ करने की जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी. इसलिए कुछ शैतानी बंधन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि आप उसी बहाने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ तो कर रहे हो, क्योंकि जब खुदा आपको रिहा कर देगा आप दुआ करना छोड़ देते हो. So that is why some demonic bondages are more significant to develop intense prayer life than deliverance itself, because after deliverance you might leave praying or your thirst for prayer might die. Okay. Now another lesson which the Holy Spirit taught me was this. एक और जो लेसन मुझे रूल को सिखाया वो ये था, Opening of spiritual eyes is not more important than opening of eyes toward holiness. रूहानी आंखों से खुलना जो है वो ज़रूरी नहीं है उन आंखों से जो कि आपकी होलीनेस पाकीज़गी की आंखें हैं. तो रूल कुदस ने सिखाया रूहानी आंखों का खुलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन आंखों के खुलने से जो पाकीज़गी को देखती हैं. क्या मतलब है? एक पाकीज़ा आंखें ज़्यादा ज़रूरी हैं स्पिरिचुअल आइज से, रूहानी आंखों से. The Holy Spirit taught me the eyes of holiness. Spiritual eyes are not more important than the holy eyes or the eyes of holiness. Okay, let's move on. हम आगे बढ़ते हैं. Eyes of love is more better than the eyes of revelation. मुकाशफाती आंखें. Come on. मुकाशफाती आंखों से बेहतर जो है वो प्यार की आंखें हैं. Eyes of love are more important than the eyes of revelation. तो मुकाशफाती आंखों से बेहतर जो है वो प्यार की आंखें हैं. Why? क्यों? Because the eyes that can see vision, but those eyes cannot love or can see a man with love, that's not Jesus' attitude. क्योंकि वो आंखें जो रोया तो देख सकती है मगर एक शख्स को प्यार से नहीं देख सकती, वो खुदावंद यीशु की आंखें नहीं है. Do you understand? So that's why the eyes of love are more important than the eyes that can see visions. तो इसलिए वो आंखें जो रोया देखती हैं उससे बेहतर नहीं है जो प्यार की आंखें हैं. प्यार की आंखें मुकाशफाती आंखों से बेहतर हैं. यानी कि वो आंखें जो मोहब्बत से देख सकती हैं उन आंखों से बेहतर हैं जो रोया को देखती हैं. You know, the eyes that can see with love are better eyes that can see visions. So let's move on. हम आगे बढ़ते हैं. Some delay of answers are better than being answered by God. तो कुछ जो खुदावंद आपको डिले देता है और जवाब नहीं देता वो बेहतर है उन आंसर से जो खुदावंद आपको दे देता है. So why delay of prayer? Some delay of prayers, the answers of prayer is more important. तो क्यों जो है वो जो डिले खुदावंद देता है कुछ प्रेयर्स का वो ज़रूरी है. For it keeps us seeking God with intensity than to fall into mediocrity. वो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद को जुनूनी तौर पे ढूंढते रहते हैं, उससे वो बेहतर है कि हम एक आसान सी सादा ज़िंदगी गुजारें. So क्यों ज़रूरी है कि खुदा जो है हमारी कुछ दुआओं का जवाब नहीं देता और जवाबात को लंबा कर देता है? इसलिए क्योंकि जब तक खुदा जवाब नहीं देता हम शिद्दत से जुनून से खुदा का ढूंढ रहे होते हैं. अगर खुदा का जल्दी जवाब आ जाए तो हम मीडियोक्रिटी में फॉल कर जाते हैं. मीडियोक्रिटी क्या है? कि हम ठंडे पड़ जाते हैं. इसलिए खुदा देर तक जवाब नहीं देता, आपको तड़पाता रहता है ताकि आप खुदावन के लिए जलते रहो, तड़पते रहो और शिद्दत और जुनून से उसके पीछे पड़े रहो. That is why God does not answer the prayer quickly and cause it to delay, so that He can increase your intensity. इसलिए खुदावन जो है वो देर करता है आपको जवाब देने में और जल्दी नहीं देता ताकि आपकी शिद्दत बढ़ जाए.
All right. So some ending lessons now I want to tell you, आखिरी लेसन सीखेंगे and this one is the, you can say, the best of all. और ये सबसे बेहतर सबसे बेस्ट है. Are you listening, everyone? Yes. Now listen. अब सुने, The pain of the process is more important than the pleasure of the result. तो जो प्रोसेस का दर्द है वो ज़्यादा बेहतर है उस प्लेजर से जो कि रिजल्ट से मिलता है. So process का दर्द आपके रिजल्ट के मजे से ज्यादा बेहतर है. The pain of the process is more important than the pleasure of the result. Come on, Anand. तो जो प्रोसेस का पेन है वो ज़्यादा बेहतर है उस प्लेजर से जो रिजल्ट से आता है. Now listen to me what the Holy Spirit told me. It is a very killer statement. अब रोल को उसने मुझे बहुत कातिलाना जुमला दिया. Are you ready? Yes. For a man learns best by torture of pain than by lecture at school. तो एक शख्स जो है वो दर्द से ज़्यादा सीखता है उसकी बनिस्बत के जो लेक्चर आपको स्कूल में दिया जाता है. रुल कुदस ने मुझे बोला कि इंसान सबसे बेहतर तरीके से जो सीखते हैं ना जो चीज़ वो दर्द है. जो वो दर्द से सीखता है ना वो स्कूल के अंदर वो लेक्चर से भी नहीं सीखता. Oh. So now the last lesson which the Holy Spirit taught me. अब जो आखिरी लेसन जो रूल ने मुझे Do you सिखाया, want to hear? Yes. So the last lesson is तो जो आखिरी लेसन है वो ये है, the pain teaches the lesson a man does not forget. जो दर्द से सीखा हुआ लेसन है वो इंसान कभी नहीं भूलता. But the lesson learned in comfort and ease man easily forgets. मगर जो लेसन उसने आराम में सीखा होता है वो जल्दी भूल जाता है. So that's why God teaches us lessons in the pain so that we will never forget Jesus. इसलिए खुदावन यीशु जो है वो हमें खुदा जो है वो हमें दर्द में सिखाता है ताकि हम मसीह को कभी ना छोड़ें. Cut the video now.